is a great preacher, he is a teacher, and he is from USA, and he is a very honorable guest of Mr. Moses Julius as well. So I would like to request our chairperson, New Vision Pentecostal Church, Reverend Pastor Francis Emmanuel, to please come forward and present him a garland of flowers as it's a Pakistani tradition, Pakistani culture, at the same time the giver of the word of God as well. तो इसी तरह से मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत दूंगी अंकल शौकत खोखर प्लीज कम फॉरवर्ड इन वन सेकंड टू गेट अ गार्डन ऑफ फ्लावर्स टू pastor Elizabeth. Welcome Mr. Moses Julius from Shalom University. Please come forward, Mr. Moses Julius. And our choir in charge, Mr. Adil Parvez, will come here and present him a garland of flowers. Once again, put your hands together. Thank you so much, Mr. Moses Julius. So put your hands together for Mr. Hamdan Lawrence. Brother Sam आएंगे और he will present him a garland of flowers. तालियां बजाएगा. Thank you so much, Mr. Hunter. And Mr. Moses Julius would be his interpreter, as it would be easy for us to have the word of God in our native language. So once again, let's do welcome the word of God. Put your hands together, everyone. तालियां हो सामने खुदावंद के कलाम को आप लेकर चलिए. Thank you so much. शुक्रिया बहुत. We've been traveling all over Pakistan. हम पूरे पाकिस्तान में आपने सफर किया है. We've been to Karachi, हम कराची में थे, फैसलाबाद में थे, and now we're here with you in Lahore. और आज हम आपके साथ लाहौर में हैं. And every time that I come to a new congregation, जब भी मैं नई कलीसिया में जाता हूँ, my heart always desires to meet your needs, not just to speak and teach the word of God. मैं हमेशा कोशिश होती है कि आपकी ज़रूरत के बारे में बातचीत कर सकूँ. My prayer this morning is that you would open up our hearts in the very deepest way. मैं जब सुबह दुआ कर रहा था तो मैं तब खुदा को कह रहा था खुदा फिर के दिल को खोल ताकि ये बातों को समझ सके. When I came in, one of the first things I noticed was the banner Feast of Tabernacle. जब मैं अंदर आया तो मेरी सबसे पहले नजर इस पे पड़ी थी फीस्ट ऑफ टैबरनेकल के ऊपर. And I noticed the beauty of the menorah. और ये बहुत खूबसूरत जो मनोरा है. My ministry back in America is called lighttv ministry. मेरी जो मिनिस्ट्री है अमेरिका के अंदर उसका नाम लाइटन मिनिस्ट्री, उसका भी यही निशान है. And I focus on teaching the seven spirits. और मेरा हमेशा फोकस है इन 7 रूहों के बारे में बात करना. The 7 days of creation. 7 दिन तस्लीम के. The 7 biblical holidays. 7 ईदों के जो हम सेलिब्रेट करते हैं. The 7 churches in Revelation. 7 कलीसियों के जो प्रकाश वाली किताब के अंदर है. The 7 spirits. और 7 रूहें. The 7 seals. और 7 मोहरों के बारे में. The 7 trumpets. और 7 नरसिलों के बारे में. And the 7 bowls. और 7 रूहों के बारे में. And each one of them are directly related to one another. एक दूसरे के साथ ये जुड़ी हुई हैं. Today, I want to focus in on
the lampstand, but I want to focus in on the entire tabernacle. मेरा कोशिश है कि मैं मनोरा के साथ साथ आपको इज्तिमाई जो खैमा-इज्तिमा है उसके बारे में भी बता सकूं। In order to understand the tabernacle, we have to go back to the Garden of Eden. कहना इससे पहले कि मैं आपको खैमा-इज्तिमा के बारे में बताऊं तो हमें बागी अदन की तरफ जाना होगा। Please turn to your Bibles to Genesis chapter 3. हमें खुदाई की किताब उसके 3 बाब में देखेंगे। Chapter 3, verse 23 and 24. 3 बाब की 23 और 24 आयत पढ़ेंगे। जी। इसलिए खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस जमीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनांचे उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक की तरफ क्रोबियों को और चोगे तोड़ने वाली 16 सन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। आमीन। Amen. Amen. We know the story very well. कहते हैं हम इस कहानी से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। We often get taught something about the story that is not accurate. कहता है जो कुछ हमें सिखाया गया कई दफा वो सही नहीं हो सकती। It is true that God removed Adam and his wife. कहते हैं ये बिल्कुल सच है कि खुदा ने आदम और हवा को बागे से बाहर निकाल दिया। But the reason He removed them from the garden इसकी क्या वजह थी खुदा ने उनको बागे से बाहर निकाल दिया? was not to keep them from the tree of life. क्योंकि उन्होंने जिंदगी के दरख्त को संभाल ना सके। I know when you read it, it says that they were moved out of the garden to keep them from eating from the tree of life. कहते हैं आपने भी जैसे पढ़ा है कि खुदा ने उनको बाहर इसलिए निकाले क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त को ना संभाल सके। But if we look at it very carefully, that's not what it says. कहता है इसमें आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा कि जो इसमें लिखा है वो क्या है। The cherubim are placed east of the garden, कहते हैं जो क्रोबीन थे वो मशरिक की तरफ थे and each one of them has a flaming sword. और उनके हाथ में जलता हुआ शोला था And the flaming sword is twirling around. और वो जो सी शोला तलवार थी उसकी चुगेट थी The tree of life is behind the angel. और वो जिंदगी का दरख्त जो था उनके पीछे था। And what they're doing is they're not guarding Adam from the tree of life. इसलिए कि वो आदम जो था वो कहीं जिंदगी के दरख्त के पास ना चला जाए। They are guarding the way to the tree of life. क्योंकि जो बागे अदन था वो सीधा जिंदगी के दरख्त के पास उसका रास्ता था। One is to keep man away from the garden, क्योंकि इसको पीछे करने का जो मकसद था and the other is to guard the way to the garden. तो दूसरा जो था रास्ता था वो सीधा जिंदगी के दरख्त की तरफ जा रहा था। If Adam and his wife would remain doing whatever they want, क्योंकि आदम और हवा जो कुछ कर रहे थे then they wouldn't be allowed to eat from the tree of life. तो खुदा ये नहीं था चाहता कि वो जिंदगी के दरख्त से कुछ खा ले। But if they follow the way to the tree of life, अगर वो उस रास्ते की तरफ चले जाए जो जिंदगी के दरख्त की तरफ जाता है then they can have access to the tree of life. तो फिर उनकी जो था एक्सेस हो जाएगा जिंदगी के दरख्त के पास पहुंचना। Turn in your Bibles and go to Exodus chapter 25. हम दोबारा से देखें खरूज की किताब उसके 25 बाब के अंदर। The next time that we see cherubim in Scripture, हम दूसरे जो थे करोबीन के बारे में पढ़ेंगे 25 बाब खरूज 25 बाब। Exodus chapter 25. Let's begin in verse 8. 8वीं आयत से And just read verse 8. वो मेरे लिए एक मक़दस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं ठीक उसी के मुताबिक उसे बनाना। Amen. आमीन। God wanted mankind to build him a place to live. खुदावंद ये चाहता था कि ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर वो खुदा रह सके। Just as originally God built a place for man to live. जैसे खुदा ने हमारे लिए रहने के लिए एक जगह बनाई है। The reason why God made a place for man to live क्या वजह थी कि खुदा ने हमारे लिए रहने के लिए भी जगह बनाई है? is because God needs you. क्योंकि खुदा हमारी जरूरत है, वो चाहता है कि हम वो हम मिले। Sometimes we say that God doesn't need anything, कई दफा हम सोचते हैं कि खुदा को किसी चीज की जरूरत नहीं है, but that's not true. लेकिन ये सच नहीं है। You cannot teach God anything, आप खुदा को कुछ सिखा नहीं सकते, but God needs you. लेकिन खुदा को आपकी जरूरत है। That's why He made the creation. इसीलिए तो उसने तख्लीक किया, He made it for you. इसीलिए उसने आपको बनाया।
And after Adam and his wife sinned जब आदम और हवा ने गुनाह किया and were removed from the garden, और जब उनको बागीचे से निकाला गया, the cherubim were there to guard the way to the tree of life. तो फिर करूबीन को उन दरख्तों के पास बिठाया गया ताकि वो उधर दाखिल ना हो सके। In this story, God asks man to make a house for him. क्योंकि इस कहानी के अंदर ये खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा घर बनाऊंगा। At the beginning of the creation, God had 3 divisions. जब तख्लीक का काम हुआ तो खुदा ने इसको 3 हिस्सों में बांटा। His first division was dividing light from darkness. पहला काम खुदा ने रोशनी को तरीके से जुदा किया। His second division was to divide the waters from the water. दूसरी काम किया फिजा को और पानी को अलग किया। His third division was to put the greater and lesser lights in the sky with the stars for days, years, and for the Moedim. खुदा ने वक्तों और ज़मानों में इम्तियाज पैदा किया, दिनों और रात में इम्तियाज पैदा किया और ईदों के बारे में, मुकर्रर वक्त के बारे में बताया। So all of creation was designed for you. सब कुछ तकलीफ जो किया गया खुदा ने आपके लिए किया। But that still leaves God in the heavens and man down on the earth. खुदा फिर भी आसमान पर था, लेकिन जो इंसान था उनसे जमीन पर था। And God's ultimate purpose is for us to intimately dwell with Him. खुदा का जो मकसद था वो ये था कि वो हमारे अंदर रहना चाहता है। Just as God made an apartment for you, जैसे खुदा ने अलग-अलग आपके लिए घर बनाए हैं, God asked that we would make an apartment for Him. तो खुदा ये चाहता है कि वो उसी तरह हमारे अंदर भी इंफरादी तौर पे रहे। His apartment has 3 compartments. इसी तरह इनके भी 3 हाथ हिस्से हैं। It has an outer court, a holy place, and a holy of holies. जब खुदा ने खैमा-इज्तिमा बनाया तो बाहर का दरवाजा खैमा-इज्तिमा का और फिर पाक-तरीन मकाम बनाया। And He wants man to build this tabernacle for Him, तो खुदा ने चाहता था कि इंसान जो है वो खुदा के लिए खैमा-इज्तिमा बनाए so that God can dwell within them. ताकि खुदा उनके बीच में सकूनत कर सके। The outer court contains the brazen altar and the brazen laver. जब बाहर का खैमा-इज्तिमा था उसमें वो खैमा के बर्तन रखे गए थे। The holy place contains the lampstand, the table, and the altar. और जो पाक-तरीन मकाम था उसमें मनोरा रखा गया था, वो ब्रेड थी। The holy of holies contains the ark and the mercy seat. और जो पाक-तरीन मकाम था उसमें रहम की कुर्सी रखी गई थी। And it is here that we find the cherubim again. और यहाँ पर फिर हम करूबीन को देखते हैं, But this time the cherubim don't have flaming swords. लेकिन इस वक्त उनके हाथ में जलती हुई तलवार नहीं थी। But before I get to the holy of holies, इससे पहले कि कोई पाक-तरीन मकाम में दाखिल हो, I have to go through the outer court to the holy place, then to the holy of holies. तो फिर मैं आपको तब तो उसके जाने के रास्ते क्या है, बाहर का रास्ता, अंदर का दरवाजा और फिर पाक-तरीन का मकाम। There are 3 curtains that divide each one of the sections. तो उनके दरमियान में 3 पर्दे थे हर एक सेक्शन के अंदर। In Hebrew, they are guarding the way to the tree of life. क्योंकि ये अब्रानी में ये रास्ता जो है वो जिंदगी के तरफ की तरफ जाता है। The curtain on the outside is called the way. जब जो कर्टन जो पर्दा बाहर की तरफ था उसको रास्ता कहा जाता है। In Hebrew, Haderech. जी अब्रानी में हादेरिक बोला जाता है। The second curtain is called the truth. जो दूसरा दरवाजा था उसको सच्चाई का दरवाजा बोला जाता है, पर्दे को। In Hebrew, Haemet. और जिसको अब्रानी में हामिद बोलते हैं। The final curtain that goes into the Holy of Holies is called the life. जो आखिरी पर्दा है जो पाक-तरीन मकाम की तरफ जाता है उसको अब्रानी में लाइफ जिंदगी कहते हैं। Within the ark is the Torah, the 10 commandments. तो क्योंकि उसके अंदर पाक-तरीन मकाम के अंदर तोरा के 10 कमांडमेंट के 10 काम थे। In the Garden of Eden, the cherubim are guarding the way to the tree of life. क्योंकि जब हम देखते हैं कि बागे अदन का जो रास्ता है वो सीधा जिंदगी के दरख्त की तरफ जाता था। And they are guarding it with flaming swords. लेकिन वहाँ पर जो फरिश्ते थे उनके हाथ में चलते हुए तलवार थी आग से। The sword is the word of God. क्योंकि जो तलवार है वो खुदा का कलाम है। The word for sword in Hebrew means to make you thirsty. जो तलवार है इसका अब्रानी में मतलब है जिससे आपको प्यास लग सके। When the cherubim are guarding the way to the tree of life, जब करूबीन जो थे जिंदगी के दरख्त के पास खड़े किए गए, they are not preventing you from the tree of life, they are guarding the way to the tree of वो life. आपको इसलिए खड़े किए गए थे कि जब जिंदगी के दरख्त के पास जाना है तो वो रास्ता जो सा है जो बागे अदन से जिंदगी के दरख्त की तरफ जाता है। In the tabernacle, on the curtains, there are cherubim. तो जब आप खैमा-इज्तिमा को देखते तो उसके पास भी करूबीन ये खड़े होते थे। In the fine twined
linen which is above their heads, there are तो cherubim. उनके ऊपर हमेशा मेहंदी के लबास होते थे, But never do they have flaming swords. लेकिन उनके हाथ में जलती तलवार नहीं की होती। They're not protecting us. ये वो वहाँ पर हमें They are inviting you. वो असल में वहाँ पर हमें दावत देते थे, By inviting you to come into the presence of the वो intimacy हमें of God. दावत देते थे कि आओ हम खुदा के साथ मिल सके, He's asking you to make him a dwelling place. क्योंकि वो चाहता था कि मैं और आप उसके साथ हम इज्तिमा में And डालें। he wants to dwell within you. अगर वो आप में रहना चाहता है, In order to dwell with you, you have to dwell with him. अगर आप उसके अंदर रहना चाहते हैं तो वो भी आपके अंदर रहना चाहता है। So when God begins to give instructions on how to build the tabernacle, जब खुदा ने शुरू में हिदायत दी कि तुमने हैकल को किस तरह से बनाना है, he starts with the Holy of Holies and he works his way out towards तो man. फिर उसने पाक तरीन मकाम से काम शुरू करता करता वो बाहर की तरफ गया। But when man approaches God, लेकिन जब इंसान खुदा की तरफ आएगा, he has to come from the outside and work his way तो वो in. बाहर से अंदर की तरफ आएगा। Just as in the garden, God starts from where he is and goes out towards man. क्योंकि जब हम बागे अदन की कहानी को देखते तो खुदा बागे अदन से अंदर को गया था, So too God does in the pattern of the tabernacle. क्योंकि खुदा ने वो ही खैमा-इज्तिमा का पैटर्न इस्तेमाल किया जो बागे अदन में था, God is always working his way out towards you क्योंकि खुदा हमेशा बाहर से अंदर की तरफ आपकी जिंदगी के अंदर काम करता है, because he needs you क्योंकि उसको आपकी जरूरत है and I need him. और मुझे उसकी जरूरत है। So he provides a way for us to approach him उसने हमारे लिए रास्ते को खोला ताकि हम उस तक पहुंच सके। by laying our lives down at the altar, जब हम उसके सामने झुक जाते हैं उसके मज़बा के by आगे, allowing the word to wash you with the labor, जब हम जाते थे तो हम हाथ धोते थे बेसन पर जाकर, by getting illumination from the lampstand, क्योंकि ये एक लैंप स्टैंड जो था उसका अक्स है, वहाँ पर होता था खैमा-इज्तिमा के अंदर। by enjoying fellowship at the table of showbread, जब वो वहाँ पर रोटी जो तोड़ते थे, रफाकत रखते थे, वो with prayer, praise, and worship at the altar, जब वो हम जो सुना करते थे खुदा की हजूरी में, and ultimately into the Holy of Holies where God. और फिर वो आखिर में पाक तरीन मकाम पे पहुंचे थे जहाँ पर खुदा मौजूद था। In the garden there were cherubim with flaming swords. लेकिन जब हम बागे अदन में देखते तो वहाँ पर उनके हाथ में जलती हुई तलवार होती थी आग से, Guarding the way to the tree of life. जो रास्ता बागे अदन से जिंदगी के दरख्त की तरफ जाता था, Through the way, the truth, and the life, और वो भी अगर राह हक और जिंदगी था। on the side of Yeshua, अगर मैं मसीह यीशु पर पास जाना he है will grant access to the तो tree फिर of मुझे life. भी इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, राह हक और जिंदगी से, But there's no other way to the Father except through him. क्योंकि बाप के पास जाने का और कोई रास्ता नहीं है बगैर यीशु मसीह के। I can't enjoy the beauty of the Torah मैं खुदा की खूबसूरती को तब एंजॉय कर सकता हूँ without following him who is the way, the truth, and the life. जब मैं यीशु मसीह को फॉलो करूंगा जो राह हक और जिंदगी है। And when I come into his presence, I don't find cherubim with a flaming तो जब मैं उसके पास जाऊंगा तो फिर मुझे वो जो क्रोबी में नजर नहीं आएंगे उनके हाथ में जलती तलवारें। I find cherubim offering mercy. जब मैं देखूंगा तो वहाँ पर हमें नजर आएंगे जो क्रोबी है वो रहम करते हुए नजर आएंगे। That's what God is calling us to today. यही खुदा आज आपको कहना चाहता है। When you and I are obedient to the word of God, जब मैं और आप खुदा के साथ फरमाबरदार होते हैं, and you follow his ways, जब हम उसकी राहों पे चलते हैं, you're led by his spirit, जब हम उसकी इन रूहों को समझते हैं, following the one who is the way, the truth, and the life, जब हम ये बात समझते हैं कौन है राह हक और जिंदगी, you are granted access into his presence. तो फिर आप इस उसके हजूरी में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। And one day, एक दिन when the Messiah returns, जब यीशु मसीह आएंगे, for you who have overcome, जब आप अपनी मुसीबतों पे गालिब आ लेंगे, you've been obedient to the word, जब आप फरमाबरदारी के साथ उसके साथ चलेंगे, walked in the way, the truth, and the life, जब आप राह हक और जिंदगी में चलना शुरू करेंगे, you will be given access to the tree of life, तो फिर आप भी जिंदगी के दरख्त तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। to eat of the fruit, तो जब आप वो फल खा सकेंगे which is for the healing of the nations, जो कौमों की शिफा है 12 manners of fruit, और जो 12 किस्म के फ्रूट्स हैं, each different every month, जो हर महीने के डिफरेंट फ्रूट्स for हैं, the 12 tribes, जो 12 कबीले हैं, and then at the Feast of Tabernacle, जैसे फीस्ट ऑफ इस्तेमाल की ईद है,
when all the nations are gathered together तो इसका मतलब है कि खैमा-इज्तिमा की ईद पे ईद यहाँ पर तमाम की तमाम कौमें इकट्ठी हों to worship the King of Kings ताकि वो अपने बादशाह की बादशाह की and the तारीफ Lord of Lords, करें, खुदावंदों के खुदा की, and we gather together to Him. ताकि हम इकट्ठे होकर उसके हजूरी में आ जाएं। You will have the best access, the total fulfillment to Him of the tree तो of फिर life. यही जिंदगी का आखिरी मकसद है कि हम इकट्ठे होकर उसकी हजूरी में दाखिल हो सके। Yeshua, the Word of God, खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का कलाम है, made flesh, जो जिस्म में पैदा हुआ, the living Torah, जो 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 जिंदा शरीयत है, the one sent by the Father जिसको बाप ने भेजा, for you and for me. जो मेरे और आपके लिए, He needs you, उसको आपकी जरूरत है and we need Him. और हमें उसकी जरूरत है। He came to us, वो हमारे लिए आया and He's granted access to Him. ताकि हम उसके पास जा सकें। I want to encourage you, मैं आज आपकी हौसला अफजाई करूंगा, above everything else, जो कुछ बाहर है, keep following the way, जो आप उसके रास्तों पे चले, walk in the truth, सच्चाई पे चले, experience His life, जिंदगियों का तजुर्बा करें, let your light shine to the world, तो हमारी रोशनी जो सी दुनिया पर हो, let them see Yeshua in you. तो ताकि लोग देख सके यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगी में है, You are His tabernacle. क्योंकि आप उसकी खैम हैकल हैं। The world will see the outside. जब लोग आपको बाहर से देखते हैं, You get to experience Him inside तो फिर आप अंदर से तजुर्बा कर सकते हैं, and manifest Him for the world, ताकि आप अपना अक्स दूसरों पे दिखा सकें। so that they will be thirsty जब हमें प्यास लगेगी, to want to have access to the tree. तो फिर हम पहुंच सकेंगे दूसरी तरफ के पास। Amen. आमीन।